طریقے سے ایک اور خطرناک فتنہ ہے میرے بھائیوں، وہ فتنہ یہ ہے اور یہ تو اس وقت کا خطرناک فتنہ ہے، یہ فتنہ جس کا سرسری تذکرہ میں نے آپ کے سامنے خارجیت کے نام سے کیا ہے، لیکن ذرا تھوڑی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آج جہاد کا نام بہت سارے لوگ لیتے ہیں، جہاد کا نام لینے والے میرے بھائیوں اللہ کے کلام کو، نبی کی سنت کو، صحابہ کرام کو اور آج قرآن و سنت اور دین پہ چلنے والوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے، اسے بدنام کرنے کا کام کیا گیا۔ یہ بدنام کب سے ہوا؟ جب سے لوگوں نے دہشت گردی کو، فساد کو، جان و مال پر حملہ کرنے کو، آبرو کے ساتھ کھیلنے کو، مال کو نقصان پہنچانے کو، معصوموں کی جان لینے کو جہاد کا نام دینا شروع کر دیا۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اس وقت اگر کوئی جدید فتنہ اگر آپ کے سامنے آ سکتا ہے تو وہ کل 3 بڑے بڑے فتنے ہیں۔ ایک فتنہ ہے جس کو القاعدہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک دوسرا فتنہ ہے جس کو IS کے نام سے جانا جاتا ہے، داعش کا فتنہ، اور ایک تیسرا فتنہ ہے جس کو الاخوان المسلمون کے نام سے دنیا نے جانا۔ حسن بنا نے جو جماعت بنائی تھی، جو فرقہ بنایا تھا الاخوان المسلمون کے نام سے، ان 3 کا نام موجودہ دور کے دہشت گردانہ فتنوں کے ضمن میں، فرقوں کے ضمن میں نام آتا ہے۔ میں میرے بھائیوں آپ سے خصوصیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا کسی دہشت گردانہ رویے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ناحق جان مال آبرو کے پامال کرنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ کا دین بری ہے، جہاد کے لفظ کو بدنام نہ کیا جائے، جہاد کے نام پر مسلمانوں کے نوجوانوں کو ورغلانے کا کام بند کیا جائے۔ جوانوں میں آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے نعرے کے پیچھے نہ بھاگنا، اس کی آواز کے پیچھے نہ بھاگنا۔ اللہ کے کلام، نبی کے فرمان میں آپ کو جو کچھ تعلیمات دی گئی ہے اس کے سچے علماء سے وابستہ رہنا۔ اس کو کوئی بزدلی کہے، اس کو کوئی ناکارہ پن کہے، اس کو کوئی کتنا بھی ذلیل اور حقیر نام دے وہ نام دینے دے، لیکن کبھی بھی برداشت نہ کرنا کہ اللہ کے دین کا ایک شعار اسے جہاد کے نام پر میرے بھائیوں دہشت گردی کر کے بدنام کر دیا جائے۔ افسوس، اس جہاد کو بدنام کرنے کا کام بہت سارے اپنی ہی نسبت کرنے والوں نے، اسلام کی طرف نسبت کرنے والوں نے کیا ہے۔ اللہ کا دین بری ہے، اسلام بری ہے، قرآن و سنت اور سلف امت بری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیں، میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام سے بہت سارے فرقے، بہت ساری ٹولیاں، بہت سارے دھڑے امت کے اندر کام کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ لینا ہے کہ جہاد وہ نہیں ہے جسے یہ سب جہاد باور کرانا چاہتے ہیں۔ جہاد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کریں، سچے ایمان کا عقیدے کا علم حاصل کریں، اللہ کے نبی کی سنتوں کا علم حاصل کریں، حلال و حرام کی تعلیم صحیح معنوں میں سیکھیں، اپنی ذات کی اصلاح کریں، اپنے بال بچوں کی ماتحتوں کی اصلاح کریں، اپنے کنبے قبیلے کی اصلاح کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو، ہم کو کوئی ایران توران کا، کوئی 2000 4000 10,000 کلومیٹر کے دور کے واقعات پیش کر کے وہاں ایسا ہو رہا ہے، فلاں جگہ ایسے ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے ورغلانے کا کام کرتا ہے۔ خبردار، فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے آپ کے لیے، آپ کے بال بچوں کے لیے، امت کے لیے، قوم کے لیے خطرناک ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے اس سے بچ کر کے رہنا۔ اسٹیج پر ہمارے موقر ذمہ داران موجود ہیں، جمعیت اہل حدیث اکولا کے بھی اور صوبائی جمعیت مہاراشٹر کے بھی۔ یہ مشن جانتے ہیں ہمارے ذمہ داران کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں آپ کو موجودہ دور کے، عصر حاضر کے جدید فتنوں کے ضمن میں اس بات کو اس لیے تاکید کے ساتھ پیش کر رہا ہوں تاکہ کہیں آپ ورغلانے میں نہ آ جائیں، بہکانے میں نہ آ جائیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ آپ
आपको बुज़दिल कहते हैं, बुज़दिल कहते हैं। अगर आप कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए शेख अबू ज़ैद ज़मीर साहब के दर्स में बैठ जाएं, आप हदीस का इल्म हासिल करें, आप कुरान की तफसीर सीखें, आप हलाल और हराम सीखें, तो लोग कहते हैं इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अरे छोड़ो ये पढ़ना पढ़ाना किताब और ये दर्स, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी खबर नहीं है तुम्हें। और इन लोगों ने अल्लाह की कसम है ऐसे वर्गलाया, कहा कि जो दुनिया की सियासत नहीं जानता वो जाहिल, जो दुनिया की सियासत नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। आपको कुरान के इल्म से हटाकर सियासत, आपको सुन्नत के इल्म से हटाकर सियासत, आपको हलाल और हराम के इल्म से हटाकर दुनियादारियों में डालने की कोशिश करते हैं। और आप अगर ये काम न करें तो आपको बुज़दिल कहते हैं। उन्हें कहो तुम्हें जितना हमें बदनाम करना हो करते जाओ, ये कोई बातिल परस्तों का कोई नया काम नहीं है, बरसों से तुम्हारा ये किरदार रहा है। तुमने हमेशा ताने दिए हैं, इल्जाम लगाए हैं और ऐसे ही बुरे बुरे अलकाब से, नाम से तुमने हमें हमेशा नवाजा है। हमें बर्दाश्त है, लेकिन न वर्गलाओ, न बहकाओ हमें। हम मासूम बच्चों को, जवानों को, बच्चियों को, मर्दों को, खवातीन को अपनी तौहीद, अपनी सुन्नत का इल्म हासिल करने दो, जो दुनिया में अमन और अमान और आखिरत में जन्नत का, अल्लाह की मग़फ़िरत का रास्ता है। इसलिए खबरदार, कोई वर्गला न ले, कोई न बहकाए आपको। कितना भी अच्छा नाम लेकर के आए, कितना भी अच्छा नारा लेकर के आए, याद रखें वर्गलाने बहकावेने में नहीं आना। एक बात और मैं मजीद आगे आपके सामने करना चाहता हूं। आपके बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ला इल्म हैं, कम इल्म हैं, जो जज्बा अच्छा रखते होंगे, उनकी नीयत से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं नीयतों से, नीयतें काफी नहीं है। आदमी को कुरान का, सुन्नत का, सहाबा के मिशन का इल्म होना चाहिए। जो सच्चे उलमा, जो मुख्तदिर उलमा, जो कुरान और सुन्नत और सहाबे किराम के मिशन के ठोस उलमा, इन उलमाए किराम से अपने आप को जोड़ लो। खबरदार किसी कम इल्म, कभी किसी बे इल्म, किसी और इल्म और मैदान के आदमी से, किसी और तखस्सुस के आदमी से अपने आप को जोड़कर अपने दीन को बर्बाद करने की कोशिश न करना। मैं ये नहीं कहता, हमारे उलमा ये नहीं कहते कि किसी की नीयत सही नहीं है। हम कहते हैं दावत का जज्बा है, तकरीर का जज्बा है, उम्मत को दीन से आशना करने का जज्बा है, ठीक है, लेकिन आपके पास इल्म नहीं है। ये काम आपका नहीं है, ये काम उलमा का है। ये बात मैं आपसे इसलिए अर्ज करना चाहता हूं, चाहे मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान के बाज नाअहल और चाहे पड़ोस के, चाहे मशरिक और मगरिब के, चाहे यूरोप और अमेरिका, अफ्रीका के, अरब के, अजम के, दुनिया में जहां के भी रहने वाले हों, अगर वो उलमा नहीं है, कुरान और सुन्नत और सलफ़े सालिहीन सहाबे किराम के मिशन के उलमा नहीं है, उलमा नहीं है, किबार उलमा नहीं है, बड़े उलमा नहीं है, तो खबरदार उनसे वाबस्ता न होना। जज्बात की बात नहीं करना, उनका बड़ा कारनामा है, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, और इतने हजार और इतने लाख के डिजिट के हवाले भी नहीं देना, माफ करना मुझे, इससे कोई भी मोतबर नहीं बन जाता। ये कोई एतबार की चीज नहीं है, एतबार इल्म से होता है। मोतबर कौन होंगे? जिन्हें मोतबर लोग मोतबर बतलाएंगे। मेरे भाइयों, आवाम की भीड़ से कोई मोतबर नहीं होता, मार्केट से, बाजार से कोई मोतबर नहीं हो जाता। मोतबर होने के लिए मोतबर शहादत होनी चाहिए। आप अपने सुबह शाम के झगड़ों में किसी झूठे गैर मोतबर आदमी को गवाह नहीं मानते। मेरे भाइयों, आप दीन के मामले में, ईमान के मामले में, अकीदे के मामले में, हलाल और हराम के मामले में, सुन्नत के मामले में किसी गैर मोतबर को कैसे आइडियल बना लेते हैं? कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई फला है, कोई फला है, कोई फला है, इन सबको आपने अपने दीन का आइडियल बना लिया। माफ करना मेरे भाइयों, यहां दो बड़ी मुश्किलें हैं, दो बड़ी मुश्किलें। एक मुश्किल तो यह है कि अगर इनका अकीदा मनहज सही हो, अगर इनका मनहज, इनका अकीदा कुरान सुन्नत सहाबे किराम का हो, तो दूसरी मुश्किल यह है कि ये इल्म में कमजोर है, इनके पास इल्म गहरा नहीं है। और अगर दूसरी मुश्किल भी हो जाए तो अगर इनके पास मनहज भी नहीं है, यानी इनके पास सिर्फ जज्बा है, ना इनके पास कुरान का इल्म है, ना सुन्नत का गहरा इल्म है, ना सहाबे किराम का, सुन्नत सहाबे
किराम और ताबीन की सीरत का इल्म है, इनके पास सिर्फ जज्बा है। तो दो मुश्किल है, एक तो इल्म वाले भी नहीं है और दूसरे उसी के साथ साथ इनके पास सुन्नत का सहाबे किराम का मनहज भी नहीं है। जाओ दुनिया के अंदर एक दो नहीं सैकड़ों मिसालें ऐसी आपको मिल जाएंगी। अकीदे का फसाद फैलाने वाले, मनहज का फसाद फैलाने वाले, अमल का बिगाड़ फैलाने वाले, मसाइल गलत बतलाने वाले, गोया ईमान, अमल, सुन्नत, अखलाक, इबादत, रहन सहन और खास तौर पर सियासत और इख्तिदार और नज़्म जिंदगी के सिलसिले में उम्मत को मिसगाइड करने का काम इस टोले ने इस दौर में सबसे ज्यादा किया है। इनसे खबरदार रहना। आपको अकीदत है, अकीदत रखिए, लेकिन अल्लाह के कलाम, नबी की सुन्नत के एतबार से ये कभी मोतबर नहीं हो सकते। इस बात को याद रखें। आपका ये डिजिट, आपके ये लंबे लंबे नंबर, ये लाइक करने वाले और ये पसंद करने वाले, ये मारूफ लोग जो भी है, याद रखना अल्लाह के कलाम, नबी की सुन्नतों में कितना मोतबर है, इसका फैसला इससे नहीं होगा। जो मोतबर लोग हैं वो मोतबर लोग शहादत देंगे तो इनको मोतबर माना जाएगा। याद रखें, ये बहुत आम बात मैं आपके सामने कह करके जा रहा हूं, वक्त नहीं है कि तफसीलात में जाएं और ना मैं समझता हूं कि जरूरत है। आज मीडिया के जरिए से लोगों के फितने भी आपके सामने हैं। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उन फितनों से आगाह करने वाले हमारे उम्मत के किबार उलमा और जियाले भी आपके बीच में मौजूद हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है और उसकी नवाजिश है, उसका करम है कि हर दौर में अगर फितना फैलाने वाले होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन फितनों को तोड़ने वाले, उन फितनों का खात्मा करने वाले भी दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यहबिलु हादल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु यनफून अन्हु तहरीफ अलगालिन व इंतिहाल अलमुबतिलीन व तावील अलजाहिलीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कितना भी जमाना आगे चला जाए, 1000 साल, 2000 साल, 3000, 4000 और ज्यादा, इला अन तक़ूम अस्सा, क़यामत आ जाए, हर दौर में इस कुरान और सुन्नत को हासिल करने वाले, उसके ठोस इल्म रखने वाले मौजूद होंगे जो अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। यनफून अन्हु तहरीफल गालीन, गुलू करने वाले, हद से तजावुज करने वालों की हेरा फेरी का खात्मा करेंगे। वह तावील जाहिलीन, जाहिलों के खुर्द बुर्द का खात्मा करेंगे। वह इंतिहाल अल मुब्तिलीन, बातिल परस्तों के नए नए रास्तों को बेनकाब करेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों,